پیارے دوستوں، اسلام والیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی پراسرار شکاری۔ میرے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی خونی کھیل کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا استقبال اس سنسنی خیز انداز سے ہوگا۔ میں طیارے سے اتر کر دوسرے مسافروں کے ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھا تو میں نے لاؤنج کے باہر دروازے کے پاس اپنے دیرینہ دوست انور ندیم اور پریس کلب کی سیکریٹری اور روزنامہ اتفاق کی کالم نویس ماس نجم الانہار کو کرشنا پورا کے پھولوں کے ساتھ اپنے استقبال کے لیے موجود پایا۔ میں اس مرتبہ 3 برس کے بعد ڈھاکہ آیا تھا۔ ان کے لبوں پر تبسم کی کلیاں چٹک رہی تھیں۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے انور ندیم نے آگے بڑھ کر میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا، پھر وہ بڑی گرمجوشی سے مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ پھر نجم الانہارا اپنا دلکش تبسم مجھ پر نچھاور کرتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے میرے گلے میں ہار پہنایا، سلام کیا اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا۔ اس ہاتھ کا لطیف لمس میری رگ رگ میں بجلی کی لہر بن کر اتر گیا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھوں سے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے نجم الانہار کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جو بنگالی حسن کا نادر نمونہ تھی۔ ان 3 برسوں میں اس کا حسن اور دلربا ہو گیا تھا۔ وہ کوئی نوعمر لڑکی نہ تھی بلکہ 30 برس کی عورت تھی۔ سرخ کناروں کی سفید ساڑی اور سفید بلاؤز میں ملبوس تھی۔ چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ لمبے لمبے سیاہ ریشمی بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتنے دلکش انداز میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سادگی میں بڑا حسن تھا۔ وہ مجھے اپنی طرف اس طرح دیکھتے پا کر سرخ ہو گئی۔ اس نے دل فریب انداز سے مسکراتے ہوئے پوچھا، اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں؟ نہیں، میں نے جواب دیا، تم اپنی عمر سے 10 برس چھوٹی لگ رہی ہو۔ وہ انوکھے انداز سے مسکرائی، دیکھو زیادہ خوشامد کی ضرورت نہیں، میں تمہاری کتاب پر اپنے کالم میں زبردست تنقید کرنے والی ہوں، بعد میں شکایت نہیں کرنا۔ میں نے کبھی تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانا تو تنقید کا کیسے برا مانا سکتا ہوں؟ میں نے رک کر اس کے اور قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں پوچھا، یہ بائی دعوے تمہاری شادی یا منگنی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں۔ وہ ہنس پڑی اور اس کا حسین چہرہ حیا آلود ہو گیا۔ میں تم جیسے لوگوں سے کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میں نے صحافت سے شادی کر لی ہے، پھر بھی تم لوگ مجھ سے آس لگائے بیٹھے ہو۔ جب تک تم شادی نہیں کرو گی ہم جیسے لوگ تمہیں پریشان کرتے رہیں گے۔ انور ندیم نے اس سے کہا، حسین لوگوں کو جتنا جلد ہو سکے شادی کر لینا چاہیے ورنہ ان کی زندگی عذاب کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ اچھا تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ نجم الانہار نے میری طرف تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ میری شادی شکار کے شوق سے ہو چکی ہے۔ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل کے کسی گوشے میں شادی کی خواہش انگرائی لینے لگتی ہے۔ میں نے اسے شوخ نظروں سے دیکھا۔ ابھی میرا ارادہ شادی کرنے کا نہیں ہے، وہ شوخی سے بولی۔ اگر میرے دل میں ایسا کوئی خیال آیا تو تم سرفہرست ہو گئے۔ ویری گڈ، تھینک یو، تھینک یو۔ میں نے اس سے گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آئی سی۔ انور ندیم مسکرایا، جبھی تو اتوار کے روز کا کالم اس نے صرف تمہارے بارے میں لکھا ہے، ویسے تم دونوں ہی شکاری ہو۔ وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے انور ندیم کی طرف دیکھا۔ تم جانوروں اور درندوں کا شکار کرتے ہو اور یہ محترمہ سیاست دانوں اور مفاد پرستوں کا۔ اگر تم دونوں سنجیدگی سے شادی کے بارے میں سوچو تو تم دونوں کی یہ جوڑی بہت اچھی رہے گی۔ انور ندیم سنجیدہ ہو گیا تو ہم دونوں مسکرانے لگے۔ مشرق اور مغرب کا یہ حسین جوڑا، میں نے درمیان میں کہا، اس حسین شکاری نے میرا بھی شکار کیا ہوا ہے۔ میں نے نجم الانہار کے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کر دیں۔ اس کے بھرے بھرے گداز ہونٹوں پر بدستور دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھی اور آنکھوں میں چراغ جل اٹھے تھے۔ میں باوجود کوشش کے اس کے جال سے نکل نہیں سکا ہوں۔ بڑا مضبوط جال ہے میرے دوست انور ندیم، اب تم شکاری کم شاعر زیادہ معلوم ہو رہے ہو۔ اس نے اپنی لمبی لمبی پلکیں جھپکائیں۔ جب بھی تم میرے تصور میں آئے تب میں نے سوچا کہ کاش میں شکاری نہ ہوتا، شاعر ہوتا اور تم پر 10,000 غزلیں اب تک ضرور کہہ دیتا۔ سامنے سے ٹرالی آتی دکھائی دی جس میں مسافروں کا سامان لدا ہوا تھا۔ پھر ہم تینوں اندر آ گئے۔ امیگریشن اور کسٹم کی کارروائیوں سے فارغ ہونے میں 10-15 منٹ بھی نہیں لگے۔ جس وقت میں امیگریشن فارم بھر رہا تھا میں نے اس وقت 40 برس کے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی وضاقت اور چہرے مہرے سے بدمعاش لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں کھڑا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی لال لال آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی چمک جو کسی خوفناک درندے کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، میں فارم پر کرنے میں لگ گیا تھا۔ انور ندیم اور نجم الانہار کے اثر و رسوخ کی وجہ سے سب سے پہلے باہر آنے والا مسافر میں
تھا لوڈر میرا سامان اٹھائے ہوئے تھا جو ایک سوٹ کیس، دستی بیگ اور بندوق پر مشتمل تھا۔ مجھے میرا ریوالور بھی رسمی مراحل طے کرنے کے بعد دے دیا گیا تھا، اسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ ریوالور میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ عمارت کے باہر وسیع وارث اور بہت خوبصورت برآمدے میں لڑکیوں، عورتوں اور مردوں کی بہت بھیڑ تھی جو اپنے رشتہ داروں کو لینے آئے ہوئے تھے۔ وہ چن کے بیرونی دروازے کے باہر بڑی بدنظمی سے کھڑے تھے، اس لیے ان کے بیچ سے راستہ بنا کر نکلنا پڑا۔ سیکیورٹی اور پولیس کے آدمی بھی انہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ میں نے اس بدماش کو دیکھا جو مجھ سے آگے تھا اور بھیڑ کو بڑی تیزی سے چیرتا ہوا بائیں جانب تیزی سے لپک گیا جہاں ایک پرانے ماڈل کی مورس گاڑی کھڑی تھی۔ معلوم نہیں کیوں ایک نامعلوم خطرے کی بو محسوس ہوئی، بلکہ میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ لوڈر میرا سامان لیے آگے تھا اور کار پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انور ندیم تھا۔ پارکنگ لاٹ پر نجم الانہار کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں اور نجم الانہار ان دونوں کے پیچھے 15-20 قدم پر تھے۔ ہم دونوں باتیں کرنے میں ایسے منہمک تھے کہ دنیا و ما فیہا کی کچھ خبر نہ تھی۔ نجم الانہار کو اچانک کسی چیز سے ٹھوکر لگئی تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، وہ گرنے لگی تو میں نے سرعت سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے ایستادہ ہوتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا تو ایک دم اچھل پڑی، پھر اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ مجھے ایک طرف دھکا دیا اور خود بھی دوسری طرف ہو گئی۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، زمین پر گر پڑا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں حیران تھا کہ نجم الانہار نے مجھے دھکا کیوں دیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پوری قوت سے حزینی انداز سے چیخی، سالار اپنے آپ کو بچاؤ، وہ بدماش تم پر فائر کرنے والا ہے۔ نجم الانہار نے جس طرف اشارہ کیا تھا میں نے اس سمت دیکھا تو سنسا ہو گیا۔ خوف کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ وہ بدماش جسے میں نے کسٹم حال میں دیکھا تھا اور جو ابھی مورس گاڑی کی طرف لپکا تھا، وہ اس گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھا کھڑکی میں سے بندوق کی نال میری طرف کر کے شست باندھ رہا تھا۔ پھر میں بغیر کسی تاخیر کے ایک طرف زمین پر گیند کی طرح لڑکتا ہو اسٹون کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک فائر داغ دیا، گولی میرے سر پر سے سنسناتی ہوئی گزر گئی، مگر دوسرے لمحے ایک دل خراش چیخ فضا میں گونجی۔ یہ گولی کسی اور کے جا کر لگی تھی۔ میں تیزی سے اٹھ کر ستون کی آڑ لیے بھاگا۔ میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ستون کی آڑ میں نہ ہو جاتا تو دوسری گولی میرے لیے فرشتہ اجل ثابت ہوتی۔ دوسری گولی ستون سے ٹکرائی اور نہ جانے کدھر جا گری۔ میں نے بائیں جانب دیکھا، پہلی گولی کا نشانہ ایک ٹیکسی ڈرائیور بنا تھا۔ گولی اس کی ران کے گوشت کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ وہ زمین پر کسی زخمی پرندے کی طرح تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ اس بدماش نے جب یہ دیکھا کہ میں اس کے حملے سے بال بچ گیا ہوں اور میری بجائے دوسرا شخص اس کی گولی کی زد میں آ گیا ہے اور اس کا دوسرا فائر بھی خالی گیا ہے، تو اس نے نجم الانہار کو اپنے نشانے کی زد میں لے لیا، جو زمین سے اٹھ کر حد درجہ خائف اور حواس باختہ ہو کر کار پارکنگ لاٹ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس بدماش نے اچانک ہی نجم الانہار کا نشانہ لیا تھا۔ اس خبیث بدماش نے فائر جھونک دیا تو گولی نجم الانہار کے شانے پر جا کر لگی اور وہ کسی لٹو کی طرح گھوم کر قریب کھڑی گاڑی کے بونٹ پر اونٹ کے بل جا گری۔ پھر اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور فضا میں دور تک گونج گئی، پھر وہ گاڑی کے بونٹ پر سے پھسلتی ہوئی زمین پر بکھر گئی۔ اس کے شانے سے خون کا ایک فوارہ ہل پڑا اور اس کے لباس کو خون سے تر کرنے لگا۔ اس گاڑی میں ایک نہیں دو بدماش تھے۔ وہ سرا بدماش تو شیئرنگ پر بیٹھا تھا۔ ان بدماشوں نے شاید سمجھا کہ نجم الانہار کا کام تمام ہو گیا ہے۔ ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے بڑھی، اس نے بڑی تیزی سے ایک چکر کاٹا اور مین روڈ کی طرف پوری رفتار سے چل پڑی۔ میں نفرت اور غصے سے اندر ہی اندر پیچ وتاب کھاتا رہ گیا۔ میری جیب میں ریوالور تھا، لیکن وہ کسی کام کا نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی گولیاں سوٹ کیس میں تھیں۔ میرا ریوالور بھرا ہوتا تو دونوں بدماشوں میں سے کوئی بھی اپنی جان بچا کر جا نہیں سکتا تھا۔ یہ خونی واقعہ چشم زدن میں پیش آیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ اور مسلح پولیس کے سپاہی حیرت سے دیکھتے اور سوچتے رہ گئے تھے جب تک انہیں ہوش آیا اور وہ گاڑی کے پیچھے لپکے۔ اتنی دیر میں ان بدماشوں کی گاڑی یہ جا وہ جا، دوسرے لمحے وہ نظروں سے اجل ہو گئی۔ پولیس کی جیپ ان کے تعاقب میں روانہ ہوئی۔ مجھے پولیس سے اس غفلت، سست روی اور بے پرواہی کی قطعی امید نہیں تھی۔ پولیس تیزی دکھاتی تھی تو رشوت لینے اور شریف اور بے گناہ آدمیوں کو گرفتار کرنے میں کوندہ بن کر نجم الانہار کی طرف لپکا۔ وہ گزشتہ 5 برسوں سے میرے بہترین مخلص اور بہت بے تکلف دوستوں میں سے تھی اور میری کتابوں اور میرے کارناموں کی جذباتی حد تک قدردان تھی۔ آج اب وہ میری محسن بھی ہو گئی تھی۔ آج اس کی وجہ سے میں موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا تھا۔ وہ غریب میری ہی وجہ سے ان درندوں کی گولی کا نشانہ بن گئی تھی۔ اسے زخمی حالت میں بے ہوش دیکھ کر میرا دل صدمے سے جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کی نبض دیکھی تو وہ چل رہی تھی، اس کے
जख्म से बहुत सा खून बह गया था और बंद नहीं हुआ था। इधर इस बदमाश की फायरिंग से एयरपोर्ट की इमारत के बाहर फिजा में चीख व पकार और एक भगदड़ मच गई थी। सब दहशत ज़दा हो गए थे। जिसका मुंह जदुर को उठा वो इस तरफ भागा। इमारत के अंदर भी खौफ व हरास फैल गया था, इसलिए कोई मुसाफिर बाहर नहीं निकला था। इधर अनवर नदीम हामता मेरे पास आया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैं किसी अस्पताल को टेलीफोन करके एम्बुलेंस मंगवाता हूँ, अनवर नदीम ने दिल गरफता लहजे में कहा। ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया? ये पुलिस का काम है, फिर भी तुम किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल को टेलीफोन करके उसकी एम्बुलेंस मंगवाओ। जाओ जल्दी करो। अनवर नदीम टेलीफोन करने के लिए इमारत के अंदर लपक गया। इसके जाते ही दो पुलिस अफसर आ गए। उनमें से एक बोला, इस बदमाश ने शायद आप पर गोलियां चलाई थीं। मैंने उनकी तरफ घूर कर गुस्से से देखा, और आप ये खूनी तमाशा देखते रहे। हम अंदर थे, दूसरे ने जवाब दिया। एक शख्स ने हमें बताया, क्या आप इन बदमाशों के बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो कौन थे और इन्होंने किस लिए आप पर फायरिंग की थी? मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूं कि वो कौन थे और इन्होंने किस लिए मुझ पर हमला किया था। मैं तुनद लहजे में बोला, मैं कराची से आज ही और उसी फ्लाइट से आया हूं जिस फ्लाइट के मुसाफिर बाहर निकल रहे हैं। आप कराची से आए हैं? इसके लहजे में हद दर्जा हैरत थी, शायद इसलिए कि मैं बंगला जबान बड़े साफ शस्ता लहजे में बड़ी रवानी से बोल रहा था। क्या आप बंगाली नहीं हैं? जी नहीं। मैं बरहम हो गया। आप देख नहीं रहे ये बेहोश और शदीद जख्मी हैं और इन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की सख्त ज़रूरत है। आप हैं कि इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं कर रहे? क्या ये खातून आपकी अहलिया हैं? एक ने मुझसे पूछा। दूसरा इस भीतर को हटाने लगा जो हमारे गर्द जुमा हो रही थी। जी नहीं, ये मेरी मेज़बान और रोज़नामा इत्तिफाक की कलम नवीस मास नजम अलनहार खून कर रही। ओह, पुलिस अफसर का चेहरा मुतगीर हो गया और इसकी जैसे सिटी गुम हो गई। ये मास नजम अलनहार हैं। आप ऐसा करें, इन्हें मेरी गाड़ी में ले चलें। इसने तौक़ुफ़ करके अपनी जेब से गाड़ी की चाबियां निकालीं और अपने साथी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इदरीस जल्दी से मेरी गाड़ी ले आओ। जानते हो ये औरत कौन है? मास नजम अलनहार, रोज़नामा इत्तिफाक की कलम नवीस। वो हैरत से उछल पड़ा और इसकी आंखें फैल गईं। ये औरत तो हमारे 12 बजा देगी। वो गाड़ी लाने के लिए जल्दी से पार्किंग लॉट की तरफ दौड़ा गया। इसकी गाड़ी आने से पहले अनवर नदीम आ गया। मैंने अस्पताल टेलीफोन कर दिया है। अव्वल तो वो ये केस लेने के लिए तैयार नहीं थे। जब मैंने नजम अलनहार के बारे में बताया तो उनके दिमाग दुरुस्त हो गए। एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुंच रही है। इंस्पेक्टर की गाड़ी भी आ रही है, इसमें ले चलते हैं, मैंने अनवर नदीम से कहा। फिर इंस्पेक्टर से बोला, आप इस गरीब टैक्सी ड्राइवर को भी फौरन अस्पताल पहुंचा दें। मालूम नहीं इस गरीब की क्या हालत है, वो बेहोश पड़ा है। अनवर नदीम ने कहा, आप इसकी फिक्र न करें, सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस आएगी और उसे ले जाएगी। इंस्पेक्टर ने बेपरवाही से अपने शाने चुकाए। हमें मास नजम अलनहार की फिक्र है, इसलिए कि इनकी पहुंच सबसे ज्यादा है। आपको इस टैक्सी ड्राइवर की फिक्र इसलिए नहीं है कि उसकी कोई पहुंच नहीं। मैंने इस पर तनज़ किया। जी ये बात नहीं है। वो जिन पसा गया। मैं एक बात कह रहा था, आपको शायद नहीं मालूम कि ये टैक्सी ड्राइवर मास नजम अलनहार का ड्राइवर है। अगर आपने इसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद नहीं पहुंचाई तो पूरे शहर की पुलिस की खैर नहीं होगी। अब आप जाने आपका काम। आप ऐसा करें, अनवर नदीम ने अपना ख्याल जाहिर किया, आप इस गरीब टैक्सी ड्राइवर को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचे। हम इन्हें अपनी गाड़ी में ले आते हैं। खून बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, इंस्पेक्टर ने सरहलाया। हम इसे सरकारी अस्पताल पहुंचा देते हैं। जी नहीं, उसे हमारे वाले अस्पताल ही ले आएं। इसके इलाज के अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। मैंने कहा। हमने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया। मैंने नजम अलनहार का परस अनवर नदीम को दिया और नजम अलनहार को उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। इधर इंस्पेक्टर की गाड़ी भी इस टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर के बाद हमारी गाड़ियां रास्ते में थीं तो कई एम्बुलेंस एयरपोर्ट की तरफ तेज रफ्तारी से जा रही थीं। मैंने नजम अलनहार को गाड़ी की पिछली निशस्त पर लिटाकर इसका सर अपनी गोद में रख लिया था। उसके जख्म पर रुमाल तर करके रख दिया था कि खून ज्यादा ना बहे। वो नीम बेहोशी की हालत में तकलीफ से बुरी तरह कराह रही थी। अस्पताल पहुंचते ही इन दोनों को फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। इस अस्पताल में चोटी के डॉक्टर और सर्जन मौजूद थे। नजम अलनहार की मां बहन शम्स अलनहार और भाई तंजील रहमान अस्पताल पहुंच गए। अनवर नदीम ने इन्हें टेलीफोन कर दिया था। वो सब बहुत परेशान और गमज़दा थे। सर्जन ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर बताया कि फिक्र की कोई बात नहीं है, गोली शाने में पेवस्त हो गई थी, वो निकाल ली गई है।
मरीजा की हालत खतरे से बाहर है, यही इस टैक्सी ड्राइवर अब्दुल के बारे में बताया गया। इन दोनों को खून दिया गया था। इत्तेफाक से मेरा और नजम अलनहार का एक ही ग्रुप था। चूंकि 3 बोतल खून की जरूरत थी, इसलिए भाई बहन के अलावा मुझ से भी लिया गया था। मैं जब कभी भी ढाका आता था नजम अलनहार के पास ही ठहरता था, इसलिए कि वो लोग मुझे अपने ही घर का फर्द समझते थे। इस घर से करीबी और देरीना मरासिम इसलिए थे कि माजी में जब बांग्लादेश नहीं बना था, ये लोग हमारे पड़ोसी थे और नजम अलनहार मेरी छोटी बहन की क्लास फेलो भी रह चुकी थी। मैं नजम अलनहार के पास रात को रुकना चाहता था, मगर इसके घर वाले नहीं माने। शम्स अलनहार इसके पास रुक गई, भी इसके ड्रिप लगी हुई थी और नींद का इंजेक्शन दिया हुआ था। सुबह से पहले इसका होश में आना मुमकिन नहीं था। उसके घर वाले में जैसा ले गए तो नूरउद्दीन भी चला आया। इस मर्तबा जो मैं बांग्लादेश आया तो सिर्फ शिकार के लिए नहीं आया, बल्कि खास तौर पर मुझे मेरे शिकारी दोस्त अब्बू सरकार अहमद ने मदऊ किया था। इस मर्तबा शिकार खेलने के बजाय उन 7-8 मशहूर शिकारियों को तलाश करना था जो 2 साल के अंदर पर इसरार तौर पर लापता हो गए थे। पुलिस और खुफिया पुलिस के इदारे सरतोड़ कोशिश के बावजूद भी उनकी गुमशुदगी का पता नहीं चला सके थे। उनकी लाशें तक दस्तयाब नहीं हो सकी थीं। उनमें 4 तो गैर मुल्की शिकारी थे जो सुंदरबन में शिकार के लिए आए थे। वो ढाका से एक स्टीमर में सुंदरबन लिए रवाना हुए थे। सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात ये थी कि वो सफर के दौरान स्टीमर ही से गायब हो गए थे। उनके कमरों में सामान मौजूद था, लेकिन उनका पता नहीं चला था। उन गैर मुल्की शिकारियों की पर इसरार गुमशुदगी पर उनकी हुकूमतों ने बांग्लादेश की हुकूमत को हिला कर रख दिया था। अब्बू सरकार अहमद के सदर से गहरे मरासिम थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आऊं तो दोनों मिलकर उन लापता शिकारियों का पता लगाएं जिनकी गुमशुदगी से खौफ व हरास फैला हुआ है। इसके अलावा मेरी 7वीं किताब 10वां शिकार, जो शिकार के इंतहाई सनसनी खेज और हैरत अंगेज वाकयात पर मुश्तमिल थी, इसका बंगला एडिशन भी शाये हुआ था। मेरी ये किताब अंग्रेजी ज़बान में शाये हुई थी और इसका बंगला तर्जुमा मेरे बचपन के दोस्त अनवर नदीम ने किया था और इसकी तकरीब रूनुमाई ढाका के प्रेस क्लब में 20 नवंबर को मुनक्किद होने वाली थी। शिकार के मौजू पर मेरी किताबें लंदन का एक बहुत बड़ा पब्लिशर छापता था और इसका तर्जुमा तकरीबन दुनिया की हर जबान में छपता था। मेरी हर किताब के 10 से ज्यादा एडिशन शाये हो चुके थे, भी शाये हो रहे थे। ये मेरा जरिया आमदनी था और इन किताबों की बदौलत में आज एक दौलतमंद आदमी था। मुझे हर महीने मुख्तलिफ ममालिक के पब्लिशरों की जानिब से हजारों रुपए की रकम रॉयल्टी के तौर पर वसूल होती रहती थी। आज मैं दुनिया के बेहतरीन शिकारियों में शुमार किया जाता था और मेरे कारनामों की सारी दुनिया में धूम मची हुई थी। मैं इन 30 बरसों के अरसे में मिलाया मैसूरा और अफ्रीका के जंगलों में शिकार करके कराची पहुंचा था कि अब्बू सरकार अहमद का खत मिला। वो मेरे साथ मिलाया और मैसूर में थे, जहां हमने शेर, बब्बर और देवकामत तेंदुओं का शिकार किया था। अब यहाँ एक ऐसे शख्स का शिकार करना था जो शिकारियों का शिकार कर रहा था। एक बात मेरी समझ से बालातर थी कि नादीदा दुश्मन को शिकारियों से ऐसी क्या दुश्मनी थी। ढाका के एयरपोर्ट पर जो वाकया पेश आया था, इससे ये अंदाजा हो रहा था कि नादीदा दुश्मन मेरी आमद से खौफजदा है, इसलिए इसने मुझे एयरपोर्ट ही पर हलाक कर देने का मंसूबा बनाया था, जो नजम अलनहार की वजह से बुरी तरह नाकाम रहा था। एक दूसरी बात ये मेरे लिए हैरान किन थी कि नादीदा दुश्मन को मेरी आमद की खबर कैसे हो गई। मैंने अपनी इस हैरानी का इजहार अनवर नदीम से किया तो उसने बताया, नजम अलनहार ने तुम्हारी आमद की खबर मुल्क के तमाम अखबारात में शाये करा दी थी और इस खबर में ये भी बताया गया था कि तुम शिकारियों की पर असरार गुमशुदगी का खोज लगाने आ रहे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि उन शिकारियों को किस लिए अगवा किया जा रहा होगा? मैंने पूछा। सिर्फ शिकारी ही नहीं, बहुत सारे गरीब और खूबसूरत जवान मर्द, लड़कियों और औरतों को भी अगवा किया जा चुका है। अनवर नदीम ने जवाब दिया, अगवा होने या लापता होने वालों की लाशों तक का पता नहीं चल सका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बैन अल-अक़वामी गिरोह इन्हें अगवा करके पड़ोसी मुल्क के बेगार कैंपों में पहुंचा रहा हो? इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अनवर नदीम ने कहा, सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि स्टीमर से जबकि वो अपना सफर तय कर रहे हैं, शिकारियों का लापता हो जाना हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन है। ऐसा लगता है कि इन्हें जादू के जोर से गायब कर दिया जाता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन मुझे स्टीमर से कैसे गायब करता है। उसने एक शेर बब्बर को छेड़कर अच्छा नहीं किया। सालार, तुम जरा होशियार और मुहतात रहना, अनवर नदीम ने मशवरा दिया। तुम पर दोबारा कातिलाना हमला हो सकता है। दुश्मन अपनी नाकामी पर सबकी महसूस कर रहा होगा। तुम्हारी जिंदगी हम सबको बेहद अजीज है। ये नादीदा दुश्मन कौन हो सकता है? जो भी है वो एक ज़हीन, बेहद होशियार और ख़तरनाक शख्स है। वो जो भी
ہو اور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، مکافات عمل سے بچ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ سے پورے ملک میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور غیر ملکی شکاریوں نے یہاں آنا بند کر دیا ہے۔ ابو سرکار احمد کب تک وطن واپس لوٹ رہے ہیں؟ وہ کل یہاں تمہارے استقبال کے لیے سنگاپور سے پہنچنے والے تھے، مگر پہنچ نہ سکے، بلکہ بنکاک صدر مملکت کے کسی کام سے چلے گئے ہیں۔ 3-4 دن میں ان کی واپسی متوقع ہے۔ میں اور انور ندیم صبح ہسپتال پہنچے تو نجم الانہار ہوش میں تھی۔ اس کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن خون زیادہ بجانے سے اس پر نقاہت طاری تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے زرد چہرے پر دلفریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ شمس الانہار بولی، جب سے اسے ہوش آیا ہے آپ ہی کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ اب تک کوئی 20 مرتبہ پوچھ چکی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ آپ ہی دشمن کی فائرنگ سے زخمی ہو کر کسی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اب اسے میری بات کا یقین آیا ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس نے میرے بارے میں ایک مرتبہ بھی پوچھا ہوگا۔ میں نے بستر پر نجم الانہار کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ شمس الانہار کے چہرے پر گہرا اضطراب چھا گیا۔ کیوں اور کس لیے؟ تم خود ہی اس سے پوچھ لو۔ اگر اسے میرا اتنا ہی خیال ہوتا تو پھر کیا تھا؟ نجم الانہار کے چہرے پر سرخی لہر بن کر دوڑ گئی۔ وہ نقاہت سے بولی، بہتر ہے کہ اب تم کالم نویسی شروع کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد شمس الانہار اپنے گھر والوں کا ٹیلی فون سننے کے لیے چلی گئی۔ انور ندیم ڈاکٹر سے ملنے اور اس کی رپورٹ معلوم کرنے گیا تو ہم دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نور سا چھا گیا۔ تمہاری آنکھیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا، کیا؟ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں بھی پھیل گئی، وہی جو تمہاری زبان کبھی نہ کہہ سکی۔ عورت کی زبان ہی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ وہ رک رک کر کہنے لگی، تم شکاری نگاہوں کی زبان کبھی نہ سمجھ سکے، اب چونکہ تم شاعر بنتے جا رہے ہو اس لیے آنکھوں کی زبان کا مفہوم بھی سمجھنے لگے ہو۔ تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اسے ساری زندگی بھلا نہیں سکتا۔ تم نے میرے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے اپنی جان دے سکوں؟ اس کی حسین آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ اس مہم سے واپس آنے کے بعد تمہیں صدا کے لیے اپنانے کی مہم سر کر کے رہوں گا۔ فرط حیا سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تم صدا ہی سے میرے دل کے نہاں خانے میں بسے ہوئے ہو۔ انور ندیم بے آواز دروازہ کھول کر کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ جبھی شمس الانہار بھی آئی تھی۔ اس نے آتے ہی انور ندیم سے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک طرف شیر کے شکاری کو محبت کا شکار کھیلتے دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف ایک کالم نویس کو شاعری کرتے ہوئے۔ تیسرے روز کی بات ہے، ٹیلی فون کی مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ میں رات 2 بجے اپنی 8ویں کتاب پر اسرار شکار کا آخری باب مکمل کر کے سونے کے لیے بستر پر گیا تھا۔ میں بیدار ہوا تو مجھ پر گہری غنودگی طاری تھی اور آنکھوں میں اتنی نیند بھری تھی کہ پلکیں ہی نہیں کھل رہی تھیں۔ میں نے اندازے سے اپنا ہاتھ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھایا جس پر بیڈ لیمپ اور ٹیلی فون رکھے تھے۔ میرا ہاتھ بیڈ لیمپ پر پڑا تو میں نے ٹول کر اس کا بٹن تلاش کیا۔ دوسرے لمحے کمرے میں لگی روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں نے بدقت تمام پلکیں اوپر اٹھا کر دیوارگیر گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں دل میں حیران ہوا کہ اتنی رات گئے کس کا ٹیلی فون ہو سکتا ہے۔ اس کمرے میں جو ٹیلی فون تھا وہ نشست گاہ کے ٹیلی فون سے مسلک تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا کہ کہیں ہسپتال سے نجم الانہار کی ماں نے تو رنگ نہیں کیا۔ وہ آج رات اپنی بیٹی کے پاس رک گئی تھی، حالانکہ ان کے رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں ایک نرس ڈیوٹی پر بھی تھی، اور اس کے علاوہ نجم الانہار کی طبیعت تو آج بالکل ٹھیک تھی۔ وہ بڑی تیزی سے روبہ صحت ہو رہی تھی، اور پھر آج میں سارا دن اس کے کمرے میں موجود رہا تھا۔ رات 9 بجے وہاں سے اٹھا تھا اس لیے کہ اس کے سونے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت کے بگڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ ڈاکٹروں کے بورڈ نے مختلف رپورٹیں دیکھنے کے بعد کل ہسپتال سے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ نیچے کوئی ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بجنے کی آواز سن کر بیدار ہو جائے گا اور ٹیلی فون پر بات کر لے گا۔ چند لمحوں تک کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ٹیلی فون کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ میں نے ریسیور کو کان سے لگا کر ہیلو ہی کہا تھا کہ دوسری طرف سے ایک مترنم سی آواز لہرائی، کیا یہ ماس نجم الانہار کا مکان ہے؟ اس کا لب و لہجہ بڑا صاف دشتہ تھا۔ اس کے لہجے کی نفاست اور بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی بڑے ہسپتال کی تربیت یافتہ نرس ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔
میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ ٹیلی فون ہسپتال سے آیا ہے۔ میں نے مردہ لہجے میں جواب دیا، جی ہاں، فرمائیے، کیا میں مسٹر سالار احمد سے بات کر سکتی ہوں؟ اس نے مؤدبانہ انداز سے کہا، جی میں سالار بول رہا ہوں۔ اس اجنبی لڑکی کی زبان سے مجھے اپنا نام سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ ارے خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے جیسے اطمینان کا گہرا سانس لیا، یہ جان کر کہ یہ ٹیلی فون ہسپتال سے کسی نرس کا نہیں ہے بلکہ کسی اور لڑکی کا ہے، اور وہ تنگ کرنے اور تفریح لینے کی غرض سے رات کے 3 بجے ٹیلی فون کر رہی ہے۔ ایک طرف اطمینان سا ہوا، دوسری طرف مجھے اس کے ناوقت ٹیلی فون کرنے پر سخت غصہ آیا۔ اخبارات کے ذریعے سے یہ خبر ہر کسی کے علم میں تھی کہ میں نجم الانہار کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں، اس لیے اس لڑکی نے ادھر کا نمبر گھما دیا تھا۔ یہ کوئی وقت ہے ٹیلی فون کرنے کا؟ میں غصے سے بھڑک اٹھا۔ وہ معذرت سے آمیز لہجے میں گڑگڑائی، آئی ایم ویری سوری، آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں، میں نے حیرت اور غصے سے کہا، یہ وقت ایک شریف آدمی کے سونے کا ہوتا ہے، آپ صبح بھی ٹیلی فون کر سکتی تھیں۔ اگر اتنی اہم اور ضروری بات نہ ہوتی تو میں آپ کو رات 10 بجے ہی ٹیلی فون کر لیتی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ٹیلی فون ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ٹیپ شاید نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس وقت زحمت دی۔ ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے؟ باز کی اطلاع پر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ کون ٹیپ کر رہا ہے؟ وہی جس نے ایئرپورٹ پر آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے مل سکتے ہیں؟ کیا؟ میں چونک پڑا، آپ مجھ سے کس لیے ملنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صبح 7 بجے کے بعد کسی وقت یہاں تشریف لے آئیں؟ میں آپ کو ٹیلی فون پر بتا نہیں سکتی کہ آپ سے کس لیے فوری طور پر ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم پر اصرار سا ہو گیا۔ مگر محترمہ، رات کا وقت ہے اور اس وقت ملنا کسی طرح مناسب بات نہ ہوگی۔ میں نے معذرت کی، آئی ایم سوری، اس وقت ایک ایک لمحہ میرے لیے ہی نہیں آپ کے لیے بھی کتنا قیمتی ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ شوئرہ کس نے دیکھا ہے مسٹر سالار؟ یکلخت اس کی آواز بھرا گئی، پلیز اس ملاقات کو آپ صبح پر نہ ٹالیں، پھر اس ملاقات سے کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہ ہوگا، آپ ساری زندگی پچھتائیں گے۔ آپ معمے میں کیا باتیں کر رہی ہیں؟ صاف صاف بتاتی کیوں نہیں کہ اصل بات کیا ہے؟ یہ ایک مجبوری ہے مسٹر سالار، وہ دل گرفتہ لہجے میں کہنے لگی۔ دراصل آپ سے ملنے کے ایک اور شخص بے چین ہے اور وہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا ہے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ سے آخری بار ملنا چاہتا ہے۔ دیکھے، میں نے تڑکتے لہجے میں کہا، میرے خلاف کوئی جال تو نہیں بچھایا جا رہا؟ جی نہیں، میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ بدنصیب شخص میرے والد ہیں، آپ کے دوست ہی نہیں، ہم جماعت بھی رہ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش بننے سے پہلے وہ صرف آپ سے ملنے کے لیے موت سے لڑ رہے ہیں۔ 1 منٹ، میں نے اس سے کہا، مجھے ذرا سوچنے دو۔ میں سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اس لڑکی نے مجھے عجیب مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک کشمکش سی ہونے لگی۔ یہ میرے لیے بہت عجیب بات تھی کہ ایک نوجوان لڑکی رات 3 بجے مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کا باپ ہی مجھ سے فوری طور پر ملنے کا خواہش مند تھا، اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ موت کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ معلوم نہیں یہ لڑکی کون تھی، اس کا والد کون تھا، اس کا کیا نام تھا۔ وہ میرا دوست بھی تھا۔ ایک ایسا اصرار تھا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی کسی وجہ سے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہ تھی۔ کیا مجھے اس شخص سے مل لینا چاہیے جو میرا دوست بھی ہے اور مرنے سے پہلے مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ آخر یہ شخص کس طرح سے موت کے منہ میں جا پہنچا؟ میرے ذہن میں سوالوں کے زہریلے سانپ پھنکارنے لگے۔ میں نے بادل نخواستہ اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، مگر آپ سے کیسے کہاں آ کر ملوں؟ رمنا گرین پارک کے عقبہ حصے میں وہ بولی۔ آپ ابھی چل رہے ہیں نا؟ جی ہاں، مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اتنی رات کو کسی سواری کا ملنا بہت مشکل ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اور پھر میں آپ کو کیسے پہچانوں گا؟ آپ وہاں کسی جگہ پر ہوں گی؟ میں ایک ہی سانس میں اس سے کئی سوال کر ڈالے۔ میرا نام لڑکی ہے، اس نے کہا، میرے سوا وہاں کوئی عورت تو کیا مرد بھی نہیں ہوگا، میں خود ہی آپ تک پہنچ جاؤں گی۔ پھر ٹیلی فون کا سلسلہ یکلخت منقطع ہو گیا۔ میں نے بستر سے نکل کر لائٹ آن کی اور ملحق غسل خانے کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا کہ اگر میرا نادیدہ دشمن مجھے پھانسنے کے لیے میرے لیے جال بچھا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی ایک راستہ ہے اس تک پہنچنے اور اس سے مقابلہ کرنے کا۔
मुझे कभी अपनी जान की परवाह नहीं रही थी, इसलिए कि मौत का एक दिन मुयन है और मैंने हमेशा मौत को सर पर मंडलाते देखा था। एक शिकारी जब शिकार के लिए जाता है तो वो मौत की परवाह नहीं करता है, वो मौत की आंखों में आंखें डाल देता है। मैंने अपना रिवॉल्वर आउट किया, सूटकेस से पेंसिल टार्चा निकाली, नीचे बेआवाज आया। किसी को जगाकर उनकी नींद खराब करना नहीं चाहता था। कोई जागता होता तो गाड़ी की चाबी ले लेता। नजमालनहार के हैं एक नहीं दो गाड़ियां थीं। मैं चंद लम्हों के बाद घर से बाहर आया था। गलियां और सड़कें वीरान और सुनसान पड़ी थीं। रात का हुस्न निखरा हुआ था, हवा में खनकी थी। गुलाबी जाड़े के दिन थे। मैं किसी सवारी की तलाश में चौराहे की तरफ बढ़ा। ये गुलशन का इलाका था। यहाँ दिन में किसी सवारी का मिलना मुश्किल होता था, इसलिए कि यहाँ बंगले और कोठियाँ थीं और लोगों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ होती थीं। इसलिए यहाँ किसी किस्म की सवारी नहीं मिलती थी। और फिर रमनागरीन पार्क यहाँ से बहुत दूर था। मैंने सोच रखा था कि आधे घंटे के अंदर अंदर कोई सवारी नहीं मिली तो नजम अलनहार के यहाँ किसी को जगाकर गाड़ी की चाबियाँ ले लूँगा। मैं चौराहे पर पहुँचा था कि मैंने मुखालिफ सिमत से एक टैक्सी को तेज़ी से आते देखा। ये महज इत्तेफाक था या गीबी मदद थी। टैक्सी मेरे पास आकर रुक गई। मैंने खिड़की में सर डालकर टैक्सी ड्राइवर से पूछा, रमना पार्क चलोगे? रमना पार्क? टैक्सी ड्राइवर ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैं नशे में हूँ। रमना पार्क सर, उस वक्त आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? पार्क तो रात 8 बजे बंद हो जाता है। तुम्हें वहाँ चलना है या नहीं? मैंने तंद लहजे में कहा, नहीं चलना है तो जाओ, मैं दूसरी टैक्सी ले लूँगा। क्यों नहीं चलूँगा सर, आप जहाँ कहीं ले चलूँगा। रमना पार्क या कौमिला चिट्टागांग राजशाही, चलिए बैठे सर। हमारा काम ही आप जैसे लोगों की खिदमत करना है। वो सीधा हो गया था और उसने अपना हाथ बढ़ा के पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोल दिया। टैक्सी चल पड़ी तो मैंने इससे पूछा, तुम उस वक्त कहाँ से आ रहे हो? फिल्म स्टूडियो से, इसने जवाब दिया। अदाकारा नमिता बोस की गाड़ी खराब हो गई थी और इसके प्रोड्यूसर की गाड़ी में किसी ने पंचर कर दिया था। मैं इन दोनों को छोड़ने आया था। नमिता प्रोड्यूसर के घर रुक गई। वो दोनों नशे में धुत थे। मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ली तो वो खामोश हो गया। इसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बड़े बड़े इंकिशाफात करना चाहता है। मैं बाहर झांकने लगा। खिड़की का शीशा उतरा हुआ था और ठंडी तेज हवा अंदर आ रही थी। मेरी आंखों में अभी तक नींद भरी हुई थी, इसलिए नींद के झोंके आने लगे थे। फिर मैं जैसे सो ही गया। एक हल्के से झटके से टैक्सी रुकी तो मेरी आंख खल गई। धान मंडी की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे उसने टैक्सी रोक ली थी। यहाँ सन्नाटा, तारीकी और वीरानी छाई हुई थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या हवा, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? इंजन में शायद कुछ खराबी पैदा हो गई है, इसने मुझे उकबा आईने में देखते हुए जवाब दिया। मैंने उसके चेहरे और आंखों के तासुरात को बदलते देखा। इसने गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया था। इसमें कोई खराबी हो गई थी तो उसे बंद हो जाना चाहिए था। इंजन में कुछ खराबी पैदा हो गई है या तुम्हारी नीयत में गाड़ी तो ठीक ठाक चल रही थी, तुमने उसे रोका क्यों? आपने नशे में भी खूब अंदाज़ा लगाया सर। इसने इस्तेहज़ाई अंदाज से हंसते हुए बाएं हाथ से वो दरवाज़ा खोला जहां मैं बैठा था। दरवाज़ा खिला तो मैं चौंक पड़ा। इसके दाएं हाथ में खौफनाक कसम का चाकू खिला हुआ था। सर, ज़रा शराफत से अपने बटवे का दीदार तो करा दें। अच्छा तो तुम लुटेरे भी हो? मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। तुम्हें टैक्सी चलाने की क्या ज़रूरत है? ये धंधा ज़्यादा अच्छा है। टैक्सी चलाने में एक फ़ायदा ये है कि आप जैसे मुर्गे मिल जाते हैं। बातें मत करें, जल्दी से बटू निकालें और टैक्सी से उतर के 9-2-11 हो जाएं, वरना कल के अखबारात में आपकी भी खबर होगी। अच्छा ये लो। मैंने अपना हाथ जेब में डालकर निकाला तो इसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। फिर इसके हाथ से चाकू छूटकर गिर पड़ा। तुम्हें कितनी गोलियों की ज़रूरत होगी? 1, 2 या 3? फिर वो एकदम से भागा। इसने मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने इग्निशन की तरफ देखा तो इसमें चाबी नहीं लगी थी। जब ही इसका इंजन एक गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया, मैंने बाहर आकर ज़मीन पर से चाकू उठाया। करीब ही बड़ा सामीन होल था। इसके जालदार ढक्कन में से चाकू अंदर डाल दिया। फिर टैक्सी का नंबर नोट किया ताकि पुलिस को ऐसे रीज़न के बारे में इत्तला कर सकूं। मैं सोच रहा था कि क्या करूं। दूर से एक साइकिल रिक्शा आता दिखाई दिया। इत्तेफाक से वो खाली था। इसे एक बहुत ही बूढ़ा आदमी चला रहा था। रिक्शा मेरे पास आकर रुक गया। कहाँ जाना है बड़े साहब? इसने पूछा।
मैं रिक्शा की सीट पर बैठ गया। रमना पार्क, जल्दी चलो, तेज तेज चलना। रमना पार्क, इसे जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। इसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ। मैं बंगला जबान में कह रहा हूँ, फ्रांसीसी जबान में नहीं। मैं न जाने क्यों चुड़ सा गया था। उसने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बहुत बुरा आदमी था। इसका सर और पैर नंगे थे। इसने 4 खाने की लुंगी और एक पूरे रंग की कमीज पहन रखी थी। उसके ऊपर एक बोसीदा सॉकेटर था। इसकी उम्र ऐसी नहीं थी कि इस उम्र में वो रिक्शा चलाए। बांग्लादेश में वो एक बूढ़ा नहीं था जो रिक्शा चलाकर अपनी जिंदगी को खींच रहा था। हर गांव और हर शहर में ऐसे हजारों बूढ़े थे। तुम इस उम्र में भी रातों की नींदें हराम करके रिक्शा चलाते हो, इसलिए कि मुझे 7 जानों का पेट पालना पड़ता है। दिन में ज्यादा आमदनी नहीं होती और हजारों रिक्शाओं की वजह से सवारियां नहीं मिलती हैं। यूं भी लोग बोले कि रिक्शा में बैठना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि इन्हें जल्दी होती है। कैरात में सवारियां मिल जाती हैं। मैंने हैरत से पूछा, क्यों नहीं? जैसे आप मिल गए इस तरह 4-6 सवारियां मिल जाती हैं और किराया भी अच्छा मिल जाता है। रात के वक्त कैसी सवारियां मिलती हैं, हर कसम की। वो गद्दी पर बैठे बैठे मेरी तरफ घूम गया। कोई चांद की तलाश में निकलता है तो कोई नशा खरीदने, कोई अस्पताल जाता है तो कोई रेलवे स्टेशन या घाट की तरफ। थोड़ी देर के बाद रिक्शा रमना पार्क के उकबा हिस्से में जाकर रुक गया। मैंने इसे 20 टाका दे तो वो खुश खुश चला गया। उसके जाने के बाद मैं तारीकी सुनाटे में डूबे हुए माहौल में खड़ा चारों तरफ देख रहा था। फिजा पर एक वीरानी सी छाई हुई थी। मैं एक करीबी दरख्त की तरफ बढ़ा। इसके नीचे खड़े होकर पार्क के अंदर झांक रहा था कि अचानक मैंने अपनी पुश्त पर किसी सख्त चीज की छन महसूस की। एक तेजुतनद नस्वानी आवाज ने पूछा, कौन हैं आप? सालार अहमद, मैंने जवाब दिया। आपके हुक्म पर हाजिर हो गया हूँ। हुक्म पर नहीं, दरखास्त पर। वो बोली, सालार अंकल, मैं सनोबर हूँ। हैरत है, उसने मेरी पुश्त पर से वो सख्त चीज हटाई। आपने मुझे आवाज से नहीं पहचाना? मैंने पलटकर देखा तो उसके खूबसूरत हाथ में पिस्तौल था। मैंने अपनी जेब से पेंसिल टार्चा निकालकर उसकी रोशनी इसके चेहरे पर डाली। उसके नाम बताने के बावजूद मैं उसे पहचान नहीं सका था। रोशनी के हले में इसका चेहरा देखा। वो मुतरा 18 बरस की एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी। इसका चेहरा मानूस मानूस सा लगा। वो मेरे और करीब आ गई। अंकल, आपने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? मैं मुश्ताक चौधरी की बेटी हूँ। मशाक चौधरी, मेरी नज़रों के सामने कौनदा सा लिपका। फिर मुझे याद आ गया, ये सनोबर थी। 3 बरस पहले उसे आखिरी मर्तबा देखा था। इन 3 बरसों में वो यकसर बदल गई थी। सनोबर, मैंने इसे शाने से लगाकर इसके सर पर हाथ फेरा। अब मैंने तुम्हें पहचान लिया। वक्त और लड़कियां इस कदर तेजी से बदल जाती हैं कि पहचानी नहीं जाती हैं। अंकल, जल्दी से चलिए, डैडी आपका इंतजार कर रहे हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर तेजी से एक सिमत चल पड़ी। चंद कदम पर दरख्तों के झुंड के पास इसकी नीले रंग की टोयोटा कोरोला गाड़ी रही थी। मैं गाड़ी में इसके साथ जा बैठा। इससे कुछ नहीं पूछा, मौका भी नहीं था। मुश्ताक चौधरी बांग्लादेश के नामवर शिकारियों में से एक थे। जब भी मैं और अब्बू सरकार अहमद शिकार के लिए सुंदर बन जाते थे, वो साथ होते। जब गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी तो मैंने उससे कहा, आपने मुझे टेलीफोन पर नाम बता दिया होता, मैं सीधे घर पहुंच जाता। डैडी ने सख्ती से मना किया था। इसने बताया, वो नहीं चाहते थे कि दुश्मन को उनकी आमद का पता चले। कौन दुश्मन? वो कहाँ गए हुए थे? वही दुश्मन जो अब तक ना जाने कितने शिकारियों को अगवा कर चुका है और सैकड़ों गरीबों को अगवा किया है और कराया है। वो बोली, डैडी कोई 2 महीने पहले स्टीमर से जाते हुए रास्ते में लापता हो गए थे। वो आज सुबह ही पहुंच गए। इस हालत में कि मैं बयान नहीं कर सकती, इसकी आवाज़ भर आ गई। जख्मों से चोर और इस कदर दहशत ज़दा है कि और गले में अटकने लगी तो वो चुप हो गई। बम ने इसके चेहरे की तरफ देखा। इसकी आंखों से 2 मोती निकलकर इसके दामन में जज्ब हो गए थे। मैंने इसे हौसला देते हुए कहा, हौसला रखो, तुम्हारे डैडी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है अंकल। वो ससक पड़ी, ये तुम कैसे कह रही हो? मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, मायूसी कफर है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। इससे बोला नहीं जा रहा था। वो बदिक्कत तमाम रुक कर बोली, मालूम नहीं हम घर पहुंचेंगे तो वो जिंदा भी मिलेंगे। बस अब आप दुआ करें।
धान मंडी में मुश्ताक चौधरी का बंगला था। जल्द ही हम पहुंच गए थे। मैं इनके कमरे में पहुंचा तो भाभी नीलम, सनोबर से बड़ी बहन सनम और एक दोस्त डॉक्टर जबीर अहमद मौजूद थे। मैं मुश्ताक अहमद के पास बिस्तर पर बैठा तो उनके जर्द चेहरे पर जिंदगी सी आ गई। सालार, तुम आ गए। उनकी आवाज़ और होंठ खुशी से कांपने लगे। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो इस पर खराशें पड़ी थीं और बदन पर चादर पड़ी थी। तुम बहुत अच्छे वक्त आए। मैं थोड़ी देर का मेहमान हूँ। इन्होंने रुककर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो बर्फ की तरह यख था। खुदा ना करे दोस्त। मैंने उनके हाथ की पुष्ट दूसरे हाथ से थपथपाई। मायूसी, कफर है। मैंने गर्दन घुमाकर नीलम भाभी की तरफ देखा। आप इन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले गईं? अस्पताल में फौरी तिब्बी इमदाद से उनकी हालत तो संभल जाती। नीलम भाभी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बल्कि दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उनके जज्बात बेकाबू हो रहे थे और आंखों में आंसुओं का सैलाब अमनट आया था। इन आंसुओं को छुपाने के लिए वो दीवार की तरफ मुंह फेर के खड़ी हो गई थीं। डैडी किसी कीमत पर अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं हुए, लिहाजा डॉक्टरों को घर पर बुलाकर दिखाना पड़ा। सनम बोली, वो किस लिए? इस लिए कि वो अस्पताल में दम तोड़ना नहीं चाहते। उनकी ख्वाहिश है कि घर में इनकी जिंदगी। उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दी। मैं घर में पैदा हुआ और घर में मरना चाहता हूँ, वो नकाहत से बोले। ये वक्त बहस व तकरार का नहीं है। मेरे पास थोड़ी सी जिंदगी है। मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ जो इंसान नहीं दरिंदा है। कौन है वो? मैंने पूछा। कहाँ रहता है? मैं तुम्हारा उस से इंतकाम लेकर रहूँगा। वो दरिंदा है सालार, लेकिन देखने में मुहज़्ज़ब इंसान लगता है। वो बताने लगा। वो किस जगह रहता है ये मैं नहीं जानता। वो एक जजीरे में रहता है। ये जजीरा कहाँ है मुझे नहीं मालूम। मैं मुझे ज़ाती तौर पर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया हूँ। वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। क्या उसने जजीरे पर अपनी हुकूमत कायम कर रखी है? हाँ। इन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर बल्ला की तकलीफ नजर आने लगी। चंद लम्हों के बाद कहने लगे, इसने ज़बरदस्त पहरा लगा रखा है। इसके बदमाश साथी और मुलाजिम हर वक्त मुसल्लह और चूक न रहते हैं। आप वहाँ से फरार होने में किसी तरह कामयाब हो गए। ये भी कहानी है जिसे सुनाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मौत मुझे मोहलत नहीं देगी। वो आंखें खोलकर मुझे देखने लगे। किस शहर के आसपास है? चिटागोंग, 12 साल, रंगामानी काकस बाजार। और मेरा जहन कुछ काम नहीं कर रहा है। इन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। मैं तारीकियों में डूब रहा हूँ। अपने आप को संभालें चौधरी साहब। आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको कुछ नहीं हुआ है। अंकल सच कह रहे हैं डैडी। सनोबर दूसरी तरफ आकर बिस्तर पर बैठ गई। वो खबीस शिकारियों का जबरदस्त दुश्मन है, इंसानों का भी दुश्मन है। उनकी सांस तेज तेज चलने लगी। वो शिकारियों और इंसानों का शिकार करके उनके साथ क्या सलूक करता है। वो मुझे फटी फटी नजरों से देखने लगे। वो उनका गोश्त खाता है, पका कर, इसलिए वो इंसानों का। मुश्ताक चौधरी की आवाज़ डूबने लगी। सांस उनका साथ छोड़ रही थी। डॉक्टर जबीर अहमद ने करीब आकर उनकी नब्ज़ देखी, फिर मेरी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर मायूसी की घटा थी। आई एम सॉरी। अब कोई उम्मीद नहीं रही। चंद लम्हों के बाद आखिर मौत ने उन 60 बरस की जिंदगी को शिकस्त दे ही दी और उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई तो डॉक्टर जुबैर अहमद ने चादर खींचकर उनके चेहरे पर डाल दी। फिर इस कमरे में एक कहराम सा मच गया। सनोबर और सनम मेरे सीने से लगकर रोने लगीं। फिजा में भाई और उनकी लड़कियों की आहीं और ससकियां गूंजने लगीं। मैं और डॉक्टर जबीर अहमद इन तीनों को कमरे से निकाल लाए। नीलम भाई पचाड़ें खाने लगीं, फिर वो गिश खाकर बेहोश हो गईं। वो 32 बरस की रफाकत के बाद इस दुनिया में अकेली रह गई थीं। मैं 2-3 दिन ठीक से सो नहीं सका। एक तरफ मुश्ताक चौधरी की अलमनाक मौत से मेरे दिल को गहरा सदमा पहुंचा था तो दूसरी तरफ इस शकी अलकलब आदमी की दरिंदगी ने मेरी नफरत, गुस्से और इंतकामी जज्बे को अपनी इंतहा तक पहुंचा दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस धरती पर एक ऐसा खून आशाम इंसान भी मौजूद है जो इंसानों और शिकारियों का शिकार करता है और उनका गोश्त खाता है। ये शख्स कोई जंगली नहीं था, इस मुहज़्ज़ब दुनिया का बाशिंदा था। एक मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता शख्स था। उसने मेरे शिकारी दोस्त मुश्ताक चौधरी को एक दर्दनाक मौत से दो चार किया था। मैं एक शफीक इंसान से महरूम हो गया। इसके घर अंधेरा छा गया था। मैंने कसम खाई थी कि
जब तक उस दरिंदा खुसलत इंसान को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं उस दरिंदे का शिकार करूंगा, इसका सारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा। एक हफ्ता गुजर गया। नजम अलनहार अपने घर आ गई थी। इसे डॉक्टरों ने 1 हफ्ते तक मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया था, मगर इसने डॉक्टरों की एक न सुनी। वो अनवर नदीम के साथ मिलकर मेरी किताब की रूनुमाई की तकरीब मुनक्किद करने की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। दूसरी तरफ से उसने मुश्ताक चौधरी की मौत पर अपने अखबार में हुकूमत की बेतोजी, अदम दिलचस्पी और पुलिस की मुजरिमाना खामोशी पर ऐसा आरेहत लिया कि हुकूमत से लेकर पुलिस तक हिल गई। फिर सारे मुल्क में गम व गस्से की लहर दौड़ गई और इस दरिंदा खुसलत इंसान के खिलाफ जुलूस भी निकाले गए और हुकूमत ने उस शख्स के सर की कीमत 10 लाख टाका मुकर्रर कर दी। अब्बू सरकार अहमद भी सिंगापुर से लौट आए थे। अनवर नदीम और मैं शाम के वक्त उनके घर चले जाते थे। फिर हम तीनों सर जोड़कर बैठ जाते थे। कई दिनों से हम तीनों मिलकर इस इंसानों के पूरा इसरार शिकारी के खिलाफ मंसूबा बना रहे थे। मुश्ताक चौधरी की मौत ने मोहलत दी होती तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि किसी तरह इस जजीरे को तलाश करें। मुमकिन है ये जजीरा ना हो बल्कि रंगमाई का जंगल हो। मेरी किताब की रूनुमाई वाले रोज सारे अखबारात में एक रूह फरसा खबर छपी कि एक और शिकारी अबुल मंसूर, जो अपने 2 साथियों के साथ शिकार के लिए सुंदरबन रॉकेट स्टीमर में जा रहे थे, वो अपने 2 साथियों समेत पूरा इसरार तौर पर लापता हो गए थे। एक खबर और भी थी कि एक लॉन्च जो चंदपुर से 22 साल की तरफ जा रही थी, इसमें जो 40 अफराद सवार थे वो भी लापता हैं, जबकि खाली लॉन्च 22 साल से 10 किलोमीटर दूर एक गांव के पास मिल गई है। पुलिस के जराये के मुताबिक ये हरकत इस दरिंदा शिकारी की थी। इन 2 खबरों से पूरे मुल्क में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। मेरी किताब की रूनुमाई की तकरीब ढाका प्रेस क्लब के सब्जाजार पर मुनक्किद हुई थी। इस तकरीब के सदर बांग्लादेश के मशहूर अदीब, ड्रामा निगार और नावल निगार अलाउद्दीन आज़ाद थे, जो बांग्ला अदब में अपना ज़बरदस्त मकाम रखते थे। मेहमान खुसूसी नज़रल एकेडमी के डायरेक्टर थे। मेरी किताबें बांग्ला ज़बान में तर्जुमा होकर पहले भी शाये हो चुकी थीं। हर किताब के पास 10 एडिशन छप चुके थे और कई किताबों के एडिशन ज़ेर तब थे। मैं यहाँ के लोगों के लिए अजनबी नहीं था, इसलिए इस तकरीब में मेरी तवक्को से कहीं बढ़कर लोग शरीक हुए थे। ये तकरीब बेहद कामयाब रही थी। मेरी किताब के 600 नुस्खे हाथ फरोख्त हो गए थे। इस तकरीब की कामयाबी पर नजम अलनहार का बड़ा हाथ था। तकरीब के इख्तिताम पर नजम अलनहार अपने घर वालों साथ जल्द ही चली गई, इसलिए कि वो बेहद थक गई थी। अलाउद्दीन आज़ाद ने मुझे और नजम अलनहार को दूसरे दिन दोपहर के खाने पर मधु किया में नज़रल एकेडमी के डायरेक्टर से बातें कर रहा था कि एक बहुत हसीन और नौजवान लड़की मेरे पास आकर खड़ी हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझसे रुखसती की इजाज़त के चाही तो मैं इस लड़की तरफ मुतवज्जह हुआ। फरमाइए, मेरा नाम झरना इफ्तिखार अहमद है। इसने अपना हाथ मुसाफिरे के लिए बढ़ाया। मेरे डैडी रिटायर्ड मेजर जनरल इफ्तिखार अहमद हैं। इन्होंने आज की रात आपको खाने पर मदऊ किया है किया। आप गरीब खाने को रौनक बख्शी। मैंने इससे हाथ मिलाने के बाद कहा, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। क्या है कि प्रोग्राम किसी और दिन नहीं हो सकता। मैं कोई 2 दिन से आपसे टेलीफोन पर राब्ता कायम करने की कोशिश कर रही हूँ, आपसे राब्ता ना हो सका। वो मुस्कुराती हुई बोली, मेरे डैडी चूंकि कल कराची 1 महीने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो आज ही आपसे मिलना चाहते हैं। उस वक्त अनवर नदीम मेरे पास आया तो झरना ने उसे सलाम किया। वो दोनों एक दूसरे से वाकिफ थे। मैंने झरना के वालिद की दावत का जिक्र किया तो अनवर नदीम ने कहा, ठीक है तुम हो, आओ। इफ्तिखार साहब खुद भी एक बहुत अच्छे शिकारी हैं। मैं दोस्तों, सहाफ़ियों और मेहमानों से मिलकर झरना के हमराह इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो मेरे बहुत सारे मद्दाहों ने, जिन में लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी, मेरा रास्ता रोक लिया। इन के हाथ में मेरी किताबें थीं। इन्होंने किताबों पर ऑटोग्राफ लेने के बाद मुझे जाने की इजाज़त दी। झरना की गाड़ी प्रेस क्लब के बाहर थी। ये नए मॉडल की मर्सिडीज गाड़ी थी। मैं दिल में हैरान था कि एक रिटायर फौजी अफसर के पास इतनी कीमती गाड़ी कहाँ से आई। बांग्लादेश बनने के बाद और फौजी हुकूमत के क़याम ने उन फौजियों की तकदीर में बदल दी थी। आज वो किसी सरमायादार से कम नहीं थे। उनके
गुलशन, बानी और दूसरे अच्छे रहायशी इलाकों में बंगले और कोठियाँ थीं और लाखों टाका की मालियत के लवाजमात से आरास्ता व पिरास्ता थीं। झरना का घर भी बतानी में था। गाड़ी खुद ही चला रही थी। मैं अगली निशस्त पर उसके पहलू में बैठा था और इसकी बातें सुन रहा था। वो मेरी एक किताब का जिक्र कर रही थी जो उसे बेहद पसंद आई थी। इससे बातें करते करते मन मेरी नज़र उकबा आईने में पड़ी तो मैं चौंक पड़ा। मैंने एक जीप को गैर महसूस अंदाज से ताक़ुब करते पाया। झरना गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तारी से चला रही थी। गाड़ी पूरी तरह इसके काबू में थी। मैंने उसकी बातों के दरमियान में पूछा, तुम कितनी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला सकती हो? बहुत ज़्यादा। मैं लंदन में 2 मरतबा तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने के मुकाबले में पहले नंबर पर आ चुकी हूँ। अगर मैं अभी और उसी वक्त तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहूँ तो ज़रूर मुस्कुराई और गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने लगी। आप मेरा इम्तिहान किस लिए लेना चाहते हैं? इसलिए कि पीछे जो जीप आ रही है वो हमारे ताक़ुब में है। मैंने कहा, तुमने एयरपोर्ट पर मेरे साथ पेश आने वाला वो वाक़या पढ़ा होगा जिसमें नजम अलनहार शदीद ज़ख्मी हो गई थी। एक टैक्सी ड्राइवर भी आज फिर ये बदमाश मुझे कोई शानदार इस्तक़बालिया देना चाहते हैं। वो भूल रहे हैं कि आप एक शिकारी हैं और मैं एक जर्नेल की बेटी। वो बेखौफी से बोली, मैं चाहता हूँ कि इन्हें किसी सुनसान इलाके में घेरा जाए। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। जीप में वही 2 बदमाश नजर आ रहे हैं। इनमें से एक बदमाश भी हाथ लग गया तो हम बड़ी आसानी से उनके सुरगन तक पहुंच सकते हैं। मैं आपकी बात समझ गई। आप जरा संभल कर बैठ जाएं। इसने रफ्तार और बढ़ाते हुए मेरी तरफ देखा। रफ्तार गैर महसूस अंदाज से तेज करती जाना। इन्हें जरा भी एहसास ना हो कि हमें उनके ताक़ुब का एहसास हो गया है। मैंने कहा। झरना बहुत तेज ज़हीन और समझदार लड़की थी। इसने मेरी बात पर पूरी तरह अमल किया। इसने धान मंडी का इलाका पार करने के बाद गाड़ी को गुलशन के रास्ते पर डाल दिया। हमें वहीं से गुजरना भी था। उसने एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी लाकर इसकी रफ्तार धीमी कर दी ताकि जेब बराबर आ जाए और मैं उनकी गाड़ी को अपने निशाने की जद में लूँ। इन बदमाशों का ख्याल था कि मैं मुसल्लह नहीं हूँ। उनकी गाड़ी जब हमारी गाड़ी से 1 गज पीछे थी, मैंने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालकर जीप के पे का निशाना लिया। पे दर पे 2 फायर किए जो अपने निशाना पर जाकर लगे। उनकी जीप कच्चे रास्ते में उतर गई और बेकाबू हो गई। मेरे कहने पर झरना ने गाड़ी एक तरफ रोक ली इसलिए कि जीप एक दरख्त के पास रुक गई थी। जीप जहां रुकी थी वहां अंधेरा था। उसकी हेडलाइट्स इन्होंने ऑफ कर दी थीं। मैंने इस तरफ फायर किया लेकिन इधर से जवाबी फायर नहीं हुआ। अलबत्ता मैंने उनके भागने की आवाज़ सुनी। वो मेरे मुसल्लह होने के खौफ से भाग निकले थे। इधर चारों तरफ घुप अंधेरा था। मैं जीप की तरफ बढ़ने लगा तो झरना बोली, मिस्टर सालार, ज़रा एहतियात से। मैं जीप के पास पहुंचा। वो दोनों बदमाश अंधेरे में गुम हो चुके थे और उनका कहीं नाम वाव निशान नहीं था। मैंने जेब से पेंसिल टार्चा निकाल कर जीप के अंदर इसकी रोशनी डाली। जीप में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो मेरे किसी काम आ सके। ये जीप चोरी की लगती थी। ये बदमाश वारदातों में चोरी की गाड़ियां इस्तेमाल करते थे। मैं झरना के यहाँ पहुंचा तो उसके वालिद इफ्तिखार अहमद ने मेरा बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। खाना लगने तक हम दोनों आपस में शिकार के मौजू पर बड़ी देर तक बातें करते रहे। मेज़ पर खाना चुनने के बाद बेगम सलमा इफ्तिखार हमें खाने की मेज़ पर ले जाने के लिए आई। वो भी बड़े पताक से मिली थीं। खाने की मेज़ पर आज के एडवेंचर के बारे में भी बड़ी देर तक बातें होती रही थीं। खाना पर तकलफ और बेहद शानदार था। खाने के बाद हम निशस्त गाह में बैठे बातें कर रहे थे और काफ़ी का दौर चल रहा था। इफ्तिखार अहमद ने अचानक मुझसे दरियाफ्त किया, मिस्टर सालार अहमद, आप किसी नंबर का जूता पहनते हैं? 9 नंबर, मैंने बताया। मैं अपने लिए जूते ऑर्डर देकर स्पेशल तौर बनवाता हूँ। 9 नंबर। वो मुस्कुराए। इत्तेफाक से मेरे पैर का नाप भी 9 नंबर का है। मैं आज आपको एक जोड़ी जूते का तोहफा पेश करना चाहता हूँ। आपने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी ऐसे चर्मी जूते नहीं पहने होंगे जो न सिर्फ बेहद नरम, मुलायम और आरामदायक हैं बल्कि बड़ी नफासत से तैयार किए गए हैं। यूं तो देखने में बेहद महलके फुल्के और नाजुक से लगते हैं लेकिन हैं बेहद मजबूत, खूबसूरत इस कदर हैं कि आदमी देखता ही रह जाए। इससे पहले कि मैं अपनी तरफ से कुछ कहता वो अपनी बेटी से मुखातिब होकर बोले, झरना बेटी, जूते का वो डब्बा ले आओ जो अलमारी में रखा हुआ है। झरना जूते लेने के लिए निशस्तगाह से निकल गई। इफ्तिखार अहमद ने जूतों की इस कदर तारीफ की थी, इन्हें देखने के लिए मेरा इश्तियाक और दिलचस्पी बढ़ गई थी। चंद लम्हों के बाद झरना
जूतों की जोड़ी ले आई जो एक खूबसूरत डब्बे में पैक किए हुए रखे थे। इफ्तिखार अहमद ने डब्बे में से जूते निकाल कर मेरे सामने रखे तो मैं इन जूतों को देखता रह गया। इन्होंने गलत नहीं कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में वाकई इतने खूबसूरत, प्यारे और बेहद मजबूत जूते नहीं देखे थे। उनकी बनावट में ऐसा हुस्न था कि मैं इश्क कर उठा था। ये सियाह रंग के थे। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि उन पर कोई पॉलिश वगैरह ना थी। बगैर पॉलिश के वो अपनी आबवताब दिखा रहे थे। आप जरा इन्हें पहन कर तो देखें। इफ्तिखार अहमद बोले, आपके साइज का भी है या नहीं? मैंने इन्हें पहना तो सारे बदन में एक अजीब सी फरहत दौड़ गई। इसमें जरा बराबर भी शक नहीं था कि ये बेहद आरामदह, मुलायम और मजबूत भी थे। मेरे पैर में बिल्कुल फिट आ रहे थे। उनके गराज से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे रेशम हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जूते पैक करके डब्बे में रखते हुए कहा। ये जूते क्या यहाँ तैयार होते हैं? इसमें शुक्रिया की क्या बात है मिस्टर सालार? वो बोले, ये जूते यहाँ तैयार नहीं होते बल्कि साल में 2 मरतबा एक बुरी नशात शख्स इन जूतों को लेकर फरोख्त करने आता है। वो जूतों की 100-150 जोड़ियाँ लेकर आता है। इस के मखसूस ग्राहक ही वो उनके हाथ फरोख्त करके चला जाता है। सदर मुमलिकत भी इससे जूतों की 2-1 जोड़ी खरीदते हैं। कितने रंग होते हैं इन जूतों के? मैंने दिलचस्पी जाहिर की। इस काले रंग में भी क्या हुस्न और चमक है, कितनी कशिश है। इसके पास 2-3 रंग होते हैं। वो बताने लगे, ये रंग भी इंसानी जलद की तरह सानुले, गहरा सानुले, सुर्खवाओ, सफ़ेद और बेहद सियाह रंग के होते हैं। हर रंग अपने अंदर बड़ी जाज़बीत और कशिश रखता है। ये किस जानवर के चमड़े के होते हैं? इसने बताया कि बर्मा के जंगलों में एक जानवर जाता है, उसका नाम टोमी है। ये इसकी खाल से बनते हैं। ये जानवर बहुत कम पाया जाता है। ये जानवर सुना है ना सिर्फ बेहद खतरनाक होता है बल्कि ज़हीन भी। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर तो ये जूते बहुत महंगे होते होंगे। मेरी जबान से बल्ला इरादा निकल गया। जी हाँ, वो ज़रलब मुस्कुराए। एक जोड़ी जूते 7,000 टाका के होते हैं। मैं हैरत से उछल पड़ा। 7,000 टाका? क्या इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है? बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन अपनी खूबसूरती, मजबूती और खसूसियत के लिहाज से ज़्यादा कीमत नहीं है। इस में एक ख़ास बात और है, वो ये कि इस पर पॉलिश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये प्लास्टिक और रबर के जूतों की तरह होते हैं। इन्हें आप किसी भी अच्छे या मामूली साबुन से धोएं, उनकी चमक बढ़ जाती है और ये बिल्कुल नए दिखाई देते हैं। 7,000 टाका? हर कोई उसे खरीद नहीं सकता। मैंने कहा, आपका ये अजीम तोहफा मैं कभी अपने से जुदा नहीं करूँगा। ये मुझे हमेशा आप लोगों की याद दिलाता रहे। एक बार फिर इस तोहफे के लिए आपका ममनून हूँ। इस बर्मी शख्स ने मुझे बताया कि ये जूते यूरोप और अमेरिका में 5-6 हज़ार डॉलर में फरोख्त होते हैं और फिर ये जूते एक आम शख्स के कुव्वत खरीद से बाहर हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी, ये सारे जूते एक ही दिन में फरोख्त हो जाते हैं। बाप और बेटी मेरे घर मुझे छोड़ गए थे। वापसी में कोई वाकया पेश नहीं आया था। वो जीप अलबत्ता वहाँ नजर नहीं आई। शायद वो बदमाश उसे वहाँ से ले गए थे। अब मुझे पहले से ज़्यादा चौकना और होशियार रहने की ज़रूरत थी। मैंने ये अनमोल तोहफा नजम अलनहार और इसके घर वालों को भी दिखाया। नजम अलनहार ने उन जूतों के बारे में सुना ज़रूर था, लेकिन उसे अभी तक इन्हें देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। इन सब ने जूतों को इस तरह हैरत से देखा था जैसे वो दुनिया का कोई अजूबा देख रहे हों। ये जूते वाकई किसी अजूबे से कम नहीं थे। मैं इन्हें रात गए तक हैरत से अलट पलट कर और पहन कर देखता रहा था। मैंने अनवर नदीम और अब्बू सरकार अहमद को दूसरे दिन ये जूते दिखाए थे। इत्तेफाक से अबू सरकार अहमद के पास इसकी एक जोड़ी थी जो सफ़ेद रंग की थी। मेरे और अबू सरकार अहमद के दरमियान इस पर इसरार शिकारी की तलाश में निकलने के लिए एक मंसूबा तय पाया। इस मुहिम को सर करने का एक तरीका ये था कि मैं रॉकेट स्टीमर से सुंदरबन शिकार खेलने जाने के लिए खलना रवाना हूँ। मेरे खलना रवानगी और शिकार के लिए जाने की खबर तमाम अखबारात में नुमायां तौर पर शाये हो। इस खबर को पढ़कर वो इंसानों का पूरा इसरार शिकारी मुझे अगवा करने की कोशिश करेगा। मैं सफ़र के दौरान होशियार और चूक न रहूं। किसी न किसी तरह कोशिश करके इस गिरोह के एक आदमी को काबू में कर लूं। तीसरे रोज़ मंसूबा के मुताबिक ढाका शहर के तमाम अखबारात में मेरी खलना रवानगी और सुंदरबन के जंगल में शिकार खेलने की खबर नुमायां तौर पर छप गई। मैं इस मुहिम
پر روانہ ہو رہا تھا تو سب سے زیادہ اداس نجم الانہار تھی، بہت فکر مند تھی اور رخصت کرتے وقت رو پڑی تھی۔ میں اسے دلاسا دے کر نارائن گنج چلا گیا۔ انور ندیم اور ابو سرکار احمد مجھے الوداع کہنے گھاٹ تک آئے تھے۔ ابو سرکار احمد دوسرے دن بذریعہ طیارہ کھلنا پہنچ رہے تھے۔ کھلنا کے ایک ہوٹل میں کمرے بک کر لیے گئے تھے۔ میں نے فرسٹ کلاس اور ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لیا تھا۔ سٹیمر روانہ ہوا تو میں نے فرسٹ کلاس کے مسافروں میں کوئی مشتبہ مسافر نہیں دیکھا۔ زیادہ تر حسین اور جوان جوڑے ہی سفر کر رہے تھے۔ مردوں میں میرے سوا ایسا کوئی نہیں تھا جو بغیر اپنی بیوی کے ہو۔ البتہ ایک عورت بیگم جمال چودھری اکیلی سفر کر رہی تھی۔ یہ عورت ایک جوٹ مل کے منیجر کی بیوی تھی۔ یہ عورت حسین، طرح دار اور بے حد پرکشش تھی۔ ہنس مکھ اور ملنسار طبیعت کی تھی۔ اسے مطالعے کا بڑا چسکا تھا، کوئی نئی کتاب اس کے ہاتھ سے بچتی نہیں تھی۔ وہ کیبن نمبر 15 میں تھی جبکہ میرے کیبن کا نمبر 13 تھا۔ اس نے مجھے لنچ کے وقت ڈائننگ ہال میں اکیلا بیٹھا ہوا پایا تو پہچان لیا۔ کتاب کی رونمائی کی رپورٹ اخبارات میں شائع ہوئی تھی، ساتھ میں میری تصویر بھی چھپی تھی۔ پھر وہ میری میز پر آ گئی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ لنچ کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی محبت کا نتیجہ ہے۔ شادی سے پہلے وہ اور اس کا شوہر لندن میں زیر تعلیم تھے۔ ان کی شادی کو 10 برس ہو چکے تھے۔ اس کے 2 بچے تھے جو لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میاں بیوی ہر 3 مہینے میں اپنے بچوں کو دیکھاتے تھے۔ بیگم جمال کی رفاقت نے میرے سفر کا لطف دوبالا کر دیا تھا، تاہم میں اپنی جگہ چکنا اور بہت ہوشیار تھا۔ بیگم جمال کے شاید علم میں نہیں تھا کہ سٹیمر کے سفر کے دوران شکاری پر اصرار طور غائب ہو جاتے ہیں اور آج میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر اس کے علم میں ایسا کوئی واقعہ تھا تو اس نے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صبح سے شام تک ہم اپنے اپنے کیبن میں بند ہونے کے بجائے عرشے پر آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے چائے پیتے اور باتیں کرتے رہے تھے۔ اس نے میری نئی کتاب ایک ہی دن میں پڑھ لی تھی اور اسے بہت پسند آئی تھی۔ اس نے میری کتاب اور میری اتنی تعریف کی تھی کہ نجم الانہار ساتھ ہوتی تو جل کر اسے دریا میں دھکا دے دیتی۔ میں نے اس کی باتوں، وزدیدہ نظروں اور حد سے زیادہ بے تکلفی کو محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ پر زبردستی فدا ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ یوں بھی مجھے اس کے خطرناک حسن سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نجم الانہار کے سوا کسی اور عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ یوں بھی میں ایک 40 برس کا شخص تھا، اب میرے لیے نجم الانہار کے سوا کوئی لڑکی یا عورت کشش نہیں رکھتی تھی۔ اس کا میری ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی لینا اور متاثر ہونا پسند نہیں آیا تھا۔ دن ڈوبنے کا نظارہ دیکھنے کے بعد وہ اپنے کیبن میں چلی گئی اور رات 8 بجے اس نے رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں ملنے کا وعدہ کر لیا۔ میں ٹھیک 8 بجے ڈائننگ ہال میں ایک کونے کی میز پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو مرد اور عورتیں اور لڑکیاں اس کو دیکھنے لگیں۔ وہ اس قدر سج دھج کر آئی تھی کہ اس کا حسن بہت خطرناک ہو گیا تھا۔ اس کی حشر سامانیاں اس قدر واضح تھیں کہ آنکھیں اس کے چہرے اور سراپا پر ٹھہر نہیں پا رہی تھیں۔ اس نے قیمتی زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ آخر وہ ایک امیر کبیر آدمی کی بیوی تھی۔ وہ اپنے لباس، زیور اور شخصیت کی کیوں نہ نمائش کرتی۔ ہم دونوں رات کا کھانا کھا کر آئے تو 10 بج رہے تھے۔ ہم نے کھانا کم کھایا، باتیں زیادہ کی تھیں۔ ہم دونوں اپنے کیبن کی راہداری میں اپنے کیبن کے سامنے ریلنگ کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے تھے، مگر میں چوکنا تھا اور میری جیب میں بھرا ہوا ریوالور موجود تھا۔ کوئی بھی مشتبہ آدمی نظر آتا تو میں اسے بخشا نہیں۔ ریلنگ کے پاس صرف ہم دونوں ہی کھڑے باتیں نہیں کر رہے تھے بلکہ اور بھی جوڑے تھے۔ باہر تاریکی تھی اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ راکب سٹیمر تیزی سے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ اس نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے مجھ سے کہا، اچھا مسٹر سالار، ایک بات تو بتائیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ہمارے اس دیس میں ایک پر اسرار جزیرہ موجود ہے جس کا باوجود کوشش کے پتہ چلایا نہیں جا سکتا؟ میں نے بھی بس آپ ہی کی طرح سنا ہی سنا ہے۔ میں بولا، اگر اس پر اسرار جزیرہ کا وجود ہوتا تو اس کا نام تو ضرور ہوتا۔ جزیرے کا نام تو نہیں معلوم، لیکن اس کے بارے میں بہت ساری عجیب و غریب اور پر اسرار کہانیاں مشہور ہیں۔ ان کہانیوں کو سن کر مجھے بہت خوف آتا ہے۔ ہم لوگوں میں ایک سب سے بڑی خرابی ہے کہ ذرا ذرا سی بات کو افسانہ بنا دیتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ سٹیمر کا سفر شکاریوں کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔